আমরা দাঁড়িয়ে আছি আগ্রাতে। ये वाला 50 का। जहांगीर किसके बेटे थे? जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। देख रहे हैं गोल सा, वो जहांगीर का बाट टब है। ऑस्ट्रेलिया छोटी बेटी की पालकी है। ছিল নিজের বউয়ের জন্য সিলিয়া কান্ট্রি থেকে গ্লাস এনে করেছে। হেই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড নিউ জার্নির ডে 2। আর এখন সকালবেলা উঠে খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গেছি আর এখন বসেছি ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্টে কি কি আছে দেখাই। এই যে গরম গরম লুচি, তার সাথে ছোলার ডাল আর আছে মিষ্টি। তো চলো খাওয়া যাক। এই যে মিষ্টি, কেন? এই যে মিষ্টি, একটা খাও না না তো চলো খাওয়া যাক। এবার আমরা বেরোবো তাজমহল, আগ্রা ওটা মাকে দিয়ে সব দেখার উদ্দেশ্যে। মিষ্টি খেয়ে না এই মতো হয় আমার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, উপর দিয়ে মেট্রো গেল আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি আগ্রাতে হোটেলের সামনে। অলরেডি গাড়ি এসে গেছে, তো এখন সবাই মিলে বেরোনো হবে। মেবি আজকে ফার্স্ট আগ্রা ফোর্টে যাব, তারপরে ওখান থেকে আগ্রা সাইট সিন গুলো করবো। আমাদের আগের দিনকে যে ট্রাভেলার গাড়িটা দেখলে না 17 সিটার, সেটাই আজকে নিয়ে যাবে আমাদের আগ্রা সাইট সিনিং ঘোরাবে আর তাজমহলটাও দেখবো। তো চলো সবটাই কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকবে ভিডিওগুলো। চলো, এই যে আমাদের গাড়ি। আর আমাকে বলো কেমন লাগছে। পাক্কা রেডি হয়ে গেছি। আর যে আমাদের হোটেলের ভিউটা দেখো, মর্নিং ভিউ। তো আমরা আমাদের ট্রাভেলারে উঠে গেছি আর এই যে আমাদের টিম। এই সবাই একটু হাত তোলো। ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো। ফার্স্টে আমরা কোথায় যাবো? আমাদের দাদা জানে ফার্স্টে কোথায় যাচ্ছি। ফোর্ট যাচ্ছি আগ্রা ফোর্ট। এটা কি নেম? এই রাস্তাটার নাম কি? এটা হচ্ছে পাতিয়াওয়ার রোড। পাতিয়াওয়ার রোড ধরে আমরা আগ্রা ফোর্টের দিকে এখন যাচ্ছি। এখানের একটা জিনিস দেখো, এই যে পিলারগুলো কি দারুণ। পিলারগুলো পুরো ইয়ে করা, পেন্টিং করা একদম পুরো। আমার হোটেল আমার হাজারনাগ ফ্যাক্টরি তনিশ दोनों साइड के लॉक लगाना, वो दोनों साइड को नहीं निकल जाएगा, है ना? তো দারুণ ওয়েল মেইনটেইন। দেখো সানফ্লাওয়ার, পিকক ফেস, আই লাভ আগ্রা। হাউ বিউটিফুল। शादी एरिया है इधर। आर्मी एरिया टोटली। दिस इज आर्मी एरिया टोटल। ये आर्मी देर कैंप ना इस साइडे। हाँ, ये साइड। अच्छा, आर्मी कैंप इस साइडे रेगुलर सब। बेस कैंप स्मेस आर्मी बेस। একই তো, সব পাশাপাশি তো, এই জন্য তো সব একই টাইপের স্ট্রাকচার গুলো এক। এখান থেকে তো জয়পুর কাছে, আগ্রা টু জয়পুর কাছে, অনেক কিছু মিল আছে আর কি। গাড়ি এখন সিগনালে। ইউপি গাড়ির নাম্বার গুলো দেখো, ইউপি HR। কমিশনার্স হাউস, হ্যাঁ এই সাইড দিয়েই মেবি লেখাই তো আছে কমিশনার্স হাউস। এটা কোন রোড? এটা रेड फोर्ट जाने वाला का रोड है ये। बिजली घाट जो रहा अकबर अशोक एंड लीगल रेस्टोरेंट। The way is
आगरा केला, ताजमहल, बालूगंज। এই যে দেখা যাচ্ছে আগ্রা ফোর্ট। আমরা এখন এখানে গাড়ি পার্কিং করব, দিস পার্কিং এরিয়া। अभी यहाँ 10:30 बज गए। कितनी देर में देख के आते वही हिसाब से बताता हूँ। इधर 1-1.5 घंटा में কাজ করেছে দেখো। ঠিক একটা হাতে নিয়ে চলো এখন আমরা ঢুকবো আগ্রা ফোর্টে। এই যে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা লিসেন, আমি একটা কথা বলি। রিসেন্ট আমার যারা ব্লগ দেখেছো তারা জানো যে আমার মুর্শিদাবাদের ভিডিওতে আমি কাটরা মসজিদটা দেখিয়েছি। সিমিলার লাইক দিস, মানে কাটরা মসজিদ টাইপ অফ দেখতে লাগছে, ঠিক আছে? চাক দে ইন্ডিয়া ধাবা, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া। लाइक करो, फॉलो करो। पूरी भाजी, पाव भाजी, आलू पराठा, मसाला डोसा। बाद में देख लेंगे, अभी अभी घूमना है आग्रा फोर्ट। কি বিশাল দেখো, মানে এখান থেকে এখনো তো এন্ট্রি আমরা করিনি, এতটা বিশাল লাগছে মানে পুরোটা। আর এখানে দেখো কিন্তু কার পার্কিং এরিয়া, প্লাস এখানে কিন্তু তোমরা খাবার দোকানও মানে পেয়ে যাবে এখানে পরপর। ম্যাগনেটগুলো প্রাইস বলছে 100 আর 120 টাকা করে। বেশি বলছে না কম বলছে জানি না, আগে আমরা ঘুরি তারপর দেখছি। এদিকেও আছে ये वाला 50 का, এগুলো और ये ऊपर का 150। 150। ফোনটা দরকার যায় আমার ফোনটা। আগ্রা ফোর্টে ঢোকার মুখেই তোমরা দেখতে পাবে টিকিট কাউন্টার আর ক্লক রুম। আর শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য টিকিটের মূল্য হচ্ছে 50 টাকা এবং শুক্রবার এটা 40 টাকা হয়ে যায়। এছাড়া সাউন্ড এবং লাইট শোর জন্য টিকিট হচ্ছে 40 টাকা এবং স্টুডেন্টদের জন্য 25 টাকা। आप घूर लो मैडम, आपको भालू लगे तो टका देना बना। ये अंदर नहीं जाएगा मैडम, सेल्फी स्टिक। কিছু বোঝে যাবে না। ছবি নাও ভাইয়া। यहीं से बताना नहीं, ये जाएगा हमारा नंबर है। दादा चलो तो स्टार्ट करेंगे, बताना। 700 है। नहीं 1000 बोला था। ना 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 ठीक है, अरे दादा 500 से 700 नहीं होगा दादा, 1000 में सही बोला दीदी। इस बार आप ग्रुप लेके आते हैं, 700 में नहीं हो पाएगा। तो मैं वही देखो आप और 100 सुनो नहीं दादा, आप एक काम करो और 100 बढ़ा देगा। अच्छा, देखो देखो 800 मिनिमम ऑप्शन हो रहा है। तो बहुत से लोग ना किले को बोलते हैं लाल किला, तो लाल किला कहाँ है? वो दिल्ली में है। ये आगरा किला, और आगरा किले का 3 गेट है। पहले गेट का नाम है अमर सिंह गेट। इसको अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहां के जो मैनसिंह कमांडर हुआ करते थे ना, उनका नाम था अमर सिंह राठौर। उनके मरने के बाद शाहजहां ने फर्स्ट गेट का नाम रखवाया अमर सिंह गेट। यह स्पोर्ट का सेकंड गेट है। इस सेकंड गेट को बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है नगाड़े। नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिलीज का एंटर होती थी ना, उनका नगाड़े द्वारा, रोज सावर द्वारा उनका यहीं से वेलकम किया जाता। आगे इस गेट के अंदर जाएंगे तो हमको तीसरा गेट दिखेगा। तीसरे गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। उसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे इस फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था, किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में, और पूरा फोर्ट बन के तैयार हुआ था 1660 में। पूरे फोर्ट को बनने में लगे 95 ईयर्स। सो 95 ईयर्स में खाली अकबर तो नहीं बना सकते, इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया गया। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 जनरेशन में पूरा फोर्ट को मिलकर कम्प्लीट किया 95 ईयर्स में। जितना भी इसका पे लकड़ी के दरवाजे देख रहे हैं ना, पहले दरवाजे नहीं होते थे। दरवाजा होता था इसी गेट को, इसे जमीन से लगा होता था 30 फीट लंबा डॉबलिज। बाहुबली पिक्चर जितना 2 गेट ऐसे उठ जाता था। वो गेट लेकर नीचे के रहती थी जौल वाली खाई, जिसके चारों का रखते थे खुमीर, कि कोई भी दुश्मन फ्रंट से बैक साइड से कोई भी फोर्ट में एंट्री ना कर सके। यहाँ पहले दरवाजे नहीं, जितने महल में दरवाजे देखे सब यहाँ पहले होते पर्दे। ये सारा महल पहले पर्दे से बंद होता था। दरवाजे जितना आप देखें सारा गवर्नमेंट ने लगवाया, ASI ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी टिकट अपना चेक कराओ, फिर अंदर चलते हैं।
आईफोन नहीं টিকিটটা এই যে টিকিটটাই নিব टिकट चाहिए नहीं यार टिकट नहीं चाहिए और यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से आपको फर्स्ट गेट नजर नहीं आएगा। नहीं यार नहीं दिख रहा है ना, ये सारे जिगजैग गेट बनाए गए थे। ये जिगजैग गेट इसलिए बनाए गए थे कि मुगल टाइम पे जब भी कोई एनिमी इसके अटैक करने के अंदर आए तो उनके हॉर्सों की स्पीड कम करने के लिए से गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएंगे, उनको आने में मुश्किलों से जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पे जितने भी कटिंग वाले पत्थर देख रहे हैं कोई डिजाइन नहीं है, ये उनके घोड़े हाथी स्लिप ना हो उनको ग्रिप मिलती है, लाइनिंग वाले पत्थर बिछाए गए थे। और जितना भी इसके पे लाल पत्थर देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाए गए थे। आज से 45 किलोमीटर दूर है भरतपुर, सारे लाल पत्थर वहाँ से मंगाए गए थे। जब ये आगरा फोर्ट बन के तैयार हुआ था वो टाइम पे इसके अंदर अमाउंट आया था 35 लाख रुपीज का। उस टाइम पे सोने का भाव था 1 रुपया 10 पैसा, 12 ग्राम 1 तोला सोना। ठीक है, तो ये जो किला है ना, ये सबसे पहले हिंदू राजा का किला होता था। ये पहले मिट्टी का किला था। सबसे पहले इस किले को बोलते थे बादलगढ़। ये बादल सिंह चौहान राजा का किला था। सबसे पहले कैपिटल भी आगरा ही हुआ करता था। अकबर जहांगीर के टाइम तक कैपिटल आगरा था। जब दिल्ली का लाल किला बनाया शाहजहां ने तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। ओके, एक यहाँ से ग्रुप फोटो निकालेंगे, आ जाओ। 1565 में बनाना स्टार्ट किया, 95 साल में कंप्लीट। এইগুলো সেই মুর্শিদাবাদের এর মতো সেই ইট দেখো ওই যে সামনে আর এই দেখো এগুলো সব যেন সেই সেম মানে ওই শেপগুলো। 1665 स्टार्टिंग, कंप्लीट 1660, टोटल 95 ईयर। बहुत बड़ा एरिया है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদে কিন্তু এই একই ইটের ব্যবহার হয়েছে। কতটা বড় মানে জায়গাটা ইকো तो ये भी मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अंदर अटैक करने के अंदर आते थे ना, जब उनके घोड़ों के पैर पड़ते जमीन के ऊपर, तो घोड़ों के पैर के अंदर क्या होती नाल, तो इको साउंड के सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। तो उनको रोकने के लिए क्या करते, दीवार के अंदर होल टाइप का देख रहे दोनों साइड, एक के अंदर हॉट ऑयल और एक के अंदर हॉट वाटर फेंकते थे। अगर दुश्मनों के ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी पड़ेगा तो वो जलेंगे, और घोड़ों के पैरों के नीचे आएगा तो वो स्लिप होंगे, फिसल जाएंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके दुश्मन आगे निकल जाते, बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, वो इस करके वहां से रोल डाउन किए। अच्छा, इसलिए 70 फीट की चढ़ाई बनाई थी, कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री ना कर सके। चलो একটা মুদি এখন আস্তে আস্তে এসো। टीम था सूरजमल जाट, उन्होंने अटैक किया इस फोर्ट के ऊपर। आने देना, फैमिली है। Okay, everyone, here please. So now we're going to walk this way, and then we're gonna come out from this side. Okay. এসো আসো। जहांगीर किसके बेटे थे? जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। जब जहांगीर छोटे थे ना, तो जहांगीर का ही नाम था सलीम। ये देखो बीच में राउंड सा रखो, कुछ देख रहे हैं गोल सा, वो जहांगीर का बाथ टब है। ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। तो वो टाइम पे ना इसके ऊपर सोना लगा होता था। और इस बाथ टब के अंदर खासियत पता है क्या है? किस तरह को कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया। इसको बाथ टब का वजन है 3000 किलो का, एक ही पत्थर में बाथ टब है ये पूरा। এই হচ্ছে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ঐতিহাসিক হাউজি জাহাঙ্গীরি বা বাথটব, যেটা আগ্রা ফোর্টে জাহাঙ্গীরি মহলের প্রবেশদ্বারের সামনেই একটা বিশাল পাথরের পাত্র, এবং এটি 1610 সালে একটি মাত্র পাথরের খণ্ড কেটেই তৈরি করা হয়েছিল।
দেখো কিরম প্যালেস বানিয়েছে, আমার জন্য একটা বানিয়ে দেবে। হ্যাঁ নো নো, আই এম জাস্ট জোকিং। और ये देखो इसको बोलते हैं ड्रम हाउस, ड्रम हाउस। जहांगीर अपने बैठक राज्य होते थे ना, उनका भी ड्रम द्वारा यहीं से वेलकम किया जाता था। ओके, यहाँ साउंड देखो, साउंड इको होता था जब सब लोग खड़े होते। হ্যাঁ ওইরকম नाच गाना और ये देखिए जगह को बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी नाच और गाने का यानी कि डांस और संगीत का जो प्रोग्राम होता है वो सारा यही होता था। तो टॉप पे आपको सिंहासन के बजे दिखते ना, राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे और राजाओं की जो रानियाँ होती थी ना उनको पर्दे में रहने का होता। रानियों का फेस कोई ना देखे, रानी के नीचे बनाए गए थे झरोके। और रानियों की जितनी दासियाँ होती थी ना, ये छोटी छोटी विंडो है ना, वो सब इसके अंदर। ये पीछे देखो, ये हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी, राजपूत थी। और जोधाबाई ने जब अकबर से शादी की थी तो उन्होंने अपनी दो शर्त रखी थी। पहली शर्त क्या थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त क्या रखी कि उनके लिए मंदिर बनवाया जाए। तो अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया, क्योंकि जोधाबाई जब शादी होकर के आई तो अपने मायके से लेकर के आई थी राधा कृष्ण की मूर्ति। जोधाबाई राधा कृष्ण की ही पूजा किया करती थी। मगर यहाँ पर एक मुगलों में क्रूर शासक कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब को जहाँ जहाँ मंदिर दिखता था वो उजाड़ दिया करता था। यहाँ पर मुगलों के बाद फिर ब्रिटिश लोगों का कब्जा हुआ, जितना भी सोना था सब अंग्रेज लोग कैप्चर करके यहाँ से ले गए। उस टाइम पे हिंदुस्तान को बोलते थे सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। फोर्ट तो फोर्ट बाबा, কত যে এদিক ওদিক দিয়ে ঘুরছি। और ये देखिए, ये है मुगल टाइम का जहांगीर का लाइब्रेरी और पेंटिंग रूम। अच्छा, मुगलों में जहांगीर ऐसे इंसान थे जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था। अभी दीवार देखो आप लोग, जैसा कि आज के टाइम में जो हम जो अपने घर की दीवार देखते हैं वो कितने इंच की दीवार होती है? ज्यादा से ज्यादा 9 इंच। ये सब उस टाइम की 48 यानी कि 48 इंच की दीवार है। और उस टाइम को सीमेंट नहीं था, तो उस टाइम पेस्ट का यूज होता था चून, सुर्खी, गुड़, शहद और ब्लैक उड़द दाल आती है ना, हाँ। उसके पेस्ट से बनी हुई सारी दीवारें। अबे दीवार पता है इतनी चौड़ी क्यों रखते हो? पहले कोई लाइट नहीं थी, कोई फैन नहीं थे। दीवार जितनी चौड़ी रखोगे घर उतना ही ठंडा रहेगा, कभी गर्म नहीं रहेगा। तो घर ठंडा रखने के लिए इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती है। আর এখন তো সব ফুটটা হলো 5 ইঞ্চি দেওয়া। এখন কেমিক্যাল। इधर आओ। দাও দাও বলছি। ঠান্ডা দেখো, হ্যাঁ সিরিয়াসলি ভিতরে কিন্তু ঠান্ডা। ঠান্ডা তো হবে। কি এইগুলো কিসের জন্য? ये एसी रूम है उस टाइम का। उस टाइम का एसी रूम है। কই এখন তো ঠান্ডা লাগছে না, গরম না आपको लगा उस टाइम पे कैसे लगता था वो बताइए ना। लेकिन इस टाइम पे क्यों नहीं है? तो वो टाइम पे कोई लाइट ही नहीं थी, तो वो टाइम पे इसको एसी रूम कैसे बनाया? दीवार देखो, ये पूरा पापा है भीतर। तो पता है दीवार कैसा? ये दीवार है, इन दीवारों के पीछे गैप है, क्या बात है? फिर उसके पीछे ही दीवार है, और इसके ऊपर एक जॉल का टैंक होता है, दीवार से कनेक्टेड था। इन दो दीवारों के बीच में जॉल रखते थे झंडा रखने के लिए। दो दीवारों के बीच में जॉल होता था, इसमें नमी होती थी, उससे पूरा महल ठंडा होता था। तो ये उस टाइम पे इसको एसी रूम ऐसे बनाया। टेक्नोलॉजी কত हाँ, देखो। दो दीवारों के बीच में जॉल रखते थे। अब जितना भी ये पूरा व्हाइट मार्बल का देखेंगे ना हम लोग, ये सारा किसने बनवाया है? शाहजहां ने। क्योंकि शाहजहां ऐसे इंसान थे जिनको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद थे। और शाहजहां मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे, उनमें से 8 मर चुके थे, 6 बच्चे उनके जीवित थे। तो 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटियां थी। उनके बेटों का नाम था दारा शिको,
औरंगजेब, मुराद और सुजा, 2 बेटियां थी, रोशन आरा और एक का नाम था जहान आरा। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज्यादा रिच मैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिच मैन कोई नहीं थे, तो उसने शाहजहां ने दोनों बेटियों की शादी नहीं की, उनके देखो पालकी जैसा महल बनवाया। क्योंकि जब उनकी बेटी इसके साथ बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो चुकी है। और ऊपर जितना जो ब्रास का लोगो दिख रहा है ना, ये सारा सोना लगा होता था इसके अंदर। तो ये रोशनारा छोटी बेटी की पालकी है, आगे जहानारा बड़ी बेटी की देखेंगे। यहाँ से देखो ताजमहल दिखेगा आप लोगों को, देखो ताजमहल देखो सामने। यमुना नदी, ये यमुना नदी है। और ये देखो नीचे ना, ये देखो ये इसी के अंदर पूरा खुमीर रखते थे वो टाइम पे, ये पूरा जल से भरा होता था, ये पूरा खुमीर। अच्छा। कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री ना कर सके, पूरा जल भरा था इसके अंदर खुमीर, क्रोकोडाइल। ওই যে তাজমহল, ওই যে ওই যে এই গর্তটা দেখছো, কুমির থাকতো যাতে না কেউ ঢুকতে পারে। हाँ। और दूर जाएंगे तो और छोटा दिखेगा अब ताजमहल लास्ट में दीवार के पास जाके देखो आप लोग, उधर लास्ट में जाके देखो, लास्ट में जाकर। लास्ट चलो में देखते जाके ताजमहल देखो। हैं, इधर से ऐसा दिख रहा है। हाँ उधर ही, हाँ চলো কি ম্যাজিক দেখি। लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओ। সিরিয়াসলি পুরো বড় লাগছে। अरे पालकी देख नजर आ रहा था, हमारा तो फोकस था ना वहाँ, तो सब जगह डाइवर्ट था। अच्छा, जब यहाँ पर आया तो हमारा फोकस ओनली का है, ओनली ताजमहल इसलिए में। ताजमहल तक बिग नजर आ रहा है। इसी को साइंस में बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूशन। नजरों का धोखा है। अच्छा, ताजमहल तो जाएगा ही है, হ্যাঁ ऑप्टिकल इल्यूजन। অপটিক্যাল ইলিউশন। হ্যাঁ যাবো। अब आप इसको Seriously, आप এখান एक থেকে मिनट रुको, দেখছি অনেক বড় লাগছে, বাট अब ওখান आप থেকে দেখলে एक मिनट ছোট। ना ऐसे ताजमहल को देखते हुए आगे जाओ, लेकर आओ। अब आप ताजमहल देखते देखते आगे जाओ, आपको हाँ। देखो बैकग्राउंड शो होता रहेगा ना, अच्छा। तो इसलिए ताजमहल छोटा होता जाएगा। ওটা হতে গেছে। अच्छा, यस, हाँ राइट, बैकग्राउंड शो हो रहा है ना, हाँ, इसीलिए हाँ, आपका right, फोकस right। क्या सब जगह है अभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। হ্যাঁ अब यहाँ से पूरा बैकग्राउंड शो हो रहा পুরো है, ব্যাকগ্রাউন্ড শো হচ্ছে। इसलिए ताजमहल स्मॉल दिख रहा है। রাইট। और ये देखो, इस महल को बोलते हैं खास महल। ये है लग्जरी बेडरूम मुमताज और शाहजहां का। ताजमहल में कोई रहते नहीं थे, ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद बना था। उनके रहने का घर, उनका बेडरूम ये था। और मैं जी देखो बेडरूम में कोई दरवाजा नहीं था ऊपर, ये देखो सब पर्दे, पर्दे की रिंगे सभी, मैं दरवाजा नहीं, पर्दा होता था यहाँ पर। अब हम बेडरूम देखेंगे अंदर से, आ जाओ। और ये देखो जितने मालूम आपको काले कलर डिजाइन कर रहा ब्लैक ब्लैक, ये देखो सारा सोना लगा होता था पैलेस के अंदर। ये सारा सोना सारा ब्रिटिश लोगों ने सारा जला के निकाला, इसलिए मालूम पड़ गए काले। देखो दो बच्चा कितनी है, उनका पैर होता है कपड़े का पैर, जो रस्सी भारत सैनिक वगैरह खींचते थे हवा करने के लिए। छोटी छोटी रिंग दिख रही है ऊपर साइडों में, उनका लग्जरी बैग बीच में होता था। पहले कोई दरवाजा नहीं थे, ओपन हाउस हुआ करता। ये है मुमताज और शाहजहां का बेडरूम, खास महल। देख रहे हैं ना आप लोग, इस फाउंटेन के अंदर रखते थे रोज वाटर, गुलाब जल। क्यों रखते हैं? ताकि पूरे महल के अंदर पूरे रोज की खुशबू रहे। और वो जो पीछे गार्डन देख रहे हैं ना, उस गार्डन को बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन किसके लिए बनवाया गया था? जहांगीर के लिए। तो ये जहांगीर ऐसे शख्स थे जिनको वाइन पीने का बहुत शौक था। इस गार्डन के अंदर अंगूर की बेल उगती, जिनकी बनाई हुई अपनी वाइन पिया करते थे। ओके, ওখানে আঙুর ফলতো এত। জাহাঙ্গীর चलो चलो ওয়াইন খেয়ে দেখো। মানু তুই এটা রাইট না और रोशना छोटी बेटी की पालकी थी,
ये जहानारा बड़ी बेटी की पालकी है। अच्छा ये बड़े बेटे की। हाँ अच्छा वो वाला वो रोशनारा छोटी बेटी की पालकी थी, ये जहानारा बड़ी बेटी की पालकी है। अब हम देखेंगे शाहजहां का बंदी घर। चलो ये जो पीछे जगह देख रहे हैं ना, जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। तो बुर्ज का मतलब होता है टावर, और उसको जासमीन टावर ही बोला जाता है कि जितने भारत में आपको टावर बने ना सारे जासमीन टावर बने। शाहजहां को 1658 में यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब। अच्छा और 8 साल बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी वो यही हुई थी। अच्छा ये शाहजहां को यहाँ पर कैद क्यों किया गया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए। तो वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 करोड़ रुपए उस टाइम। तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। तो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? खुद के लिए। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? ताजमहल से 4 गुना ज्यादा, यानी कि 16 करोड़। और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना हो जाता। और इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, अपने फादर को यहाँ पर 8 साल बंदी करके छोड़ दिया। और 8 साल बाद यहीं पर ही शाहजहां। তো চলো এবার দেখতে যাচ্ছি। মানে এত সুন্দর জায়গা আর এত ইন্টারেস্টিং লাগছে, মানে আর কি কি আছে এখানে আমি তো সেটাই ভাবছি। আগ্রা ফোর্টের মধ্যে অনেক কিছু দেখার আছে, প্রচুর জিনিস। एक के अंदर ठंडा जल, एक के अंदर गर्म जल। जब इसके अंदर एक कैंडल देता था ना, कम से कम 1000 कैंडल रिफ्लेक्ट होती थी। और जितने भी इसके अंदर ग्लास लगे ना ऊपर, ये सारे स्पेशली कहां से मंगाए गए थे? सीरिया कंट्री से। सीरिया कंट्री के ग्लास लगे इसके अंदर। ये उस टाइम का लग्जरी बाथरूम है, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। और बीवियों के लिए कुछ रिफाइनी मकबरा बनवाया शाहजहां ने। पानी का सीन चलता था, जहाज में पानी का सीन चलता था पहले भी। করেছিল নিজের বউয়ের জন্য, সিরিয়া কান্ট্রি থেকে গ্লাস এনে করেছে। মানে उससे सारा सब चीज आता था। এখানে কিন্তু ঢুকতে পারবো না, তার যে গ্লাসগুলো আছে না সেই গ্লাসগুলো সব তুলে নিয়ে চলে যাবে। যার জন্য বলছে এখানে ঢুকতে দেয় না। ঠিক আছে, এখানে দাঁড়ালে কিন্তু একটা ঠান্ডা হাওয়া আসছে সত্যি। ঠিক আছে। এ দেখো, এই যে এখানে সব হচ্ছে কি যে ওয়াইনিয়ার টোটালি, ঠিক আছে। এখানে আঙুরের চাষ হতো, মানে ওয়াইন তো খেত শাহজাহান এখানে। আর ওই দিকটা তো বলাই হলো যে পুরো রোজ পেটারের স্মেল আসতো। এই যে কত সুন্দর এখন মেনটেন করে রাখা আছে এগুলো। How big the place is, huge place. আরে উপরের এগুলো দেখো কি দারুণ। These all are এগুলো genius. না না দিদি used to carry for camping. আমার তোমার মতো লোকজন এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র মানে দরবার বসতো, মানে সবার কথা শুনতো। আর দেওয়ানি খাস মানে হচ্ছে যেখানে হচ্ছে তোমার সেনাপতি, राजा मंत्री बस। রাজা মন্ত্রী এখানে জড়া থাকতো ধরতে গেলে হচ্ছে দেওয়ানি খাস। और इस जगह को बोलते हैं ध्यान आम। শোনা না, যেখানে হচ্ছে সবার কথা শোনা। ध्यान आम का मतलब यहाँ पर लगा करता था आम जनता दरबार। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर, किसके पास? अकबर के पास। जैसा कि आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो क्या होती है? कोर्ट अदालत में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था, आम जनता का सारा फैसला यही होता था। বলবো উদাহরণ দ্বারা বলবো, বউ পালিয়ে গেছে, বউ এসে রিপোর্ট করলো যে আমার পর আর একটা বউকে পালিয়েছে, তার বিচারটা করে দেন। और ये देखो बीच में बनी हुई, देख रहे हैं कब्र बनी हुई है, ये ब्रिटिश गवर्नर का कब्र है। ये इस ब्रिटिश गवर्नर का नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। इस ब्रिटिश गवर्नर की डेथ हुई 1857 में। 1857 में क्या था? सिपाही बिल्कुल सिपाही। সিংহাসন বাহ গোটা পাথরের, হ্যাঁ একটা কোনো জয়েন্ট না, গোটা পাথর আছে। জয়েন্ট না, গোটা পাথর। হ্যাঁ পুরো গোটা পাথর কাট কেটে বানানো আছে।
হ্যাঁ বলো। দেখো আকবর উপরে বসতো আর বীরবল এই যে এখানে বসতো, এই কুশি এটা এটা সিঙ্গেল স্টোন, সিঙ্গেল মার্বেল, সিঙ্গেল মার্বেল কাটিং। বীরবলের কত গল্প ছোটবেলায় পড়েছি। আগ্রা ফোর্ট ঘোরা হয়ে গেল, আর নেক্সট আমরা কোথায় যাই চলো দেখা যাক কোথায় যাই। এটাই এত সুন্দর লাগলো। আচ্ছা নেক্সট আমরা যাব জামা মসজিদে। তো চলো, আগ্রা ফোর্ট ঘোরা হয়ে গেছে, এবার জামা মসজিদটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম, আমার মুর্শিদাবাদের ব্লগ যারা দেখেছো তারা জানো, ওখানে জামা মসজিদের আদলে তৈরি করা একটা মসজিদ আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। এবার কিন্তু সেটা একদম রিয়েলটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? So let's go. চলো এখন আমাদের আগ্রা ফোর্ট দেখা কমপ্লিট। আগ্রা ফোর্ট দেখে আমরা বেরোচ্ছি। আগ্রা ফোর্ট দেখা হয়ে গেছে, এখন কোথায় যাবো? জামা মসজিদ। জামা মসজিদ, আগ্রা জামা মসজিদ, দিল্লি জামা মসজিদ না, আগ্রা জামা মসজিদ। চলো গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। এরপরে আমরা চলে এসেছি একদম জামা মসজিদে, আর আগ্রার জামা মসজিদের পার্ট কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো চলো টাটা অ্যান্ড দেখতে থাকো তিথি ব্লগস।